એપીએમસીના ડિરેક્ટર્સો સાથે આપણે વાત કરી અને જે રીતના સીલ મરાયું હતું એ સમગ્ર પ્રક્રિયા પણ આપણે લાઈવ નિહાળી. ત્યારબાદ વાત કરી ફૂડ મર્ચન્ટ એસોસિએશનના મહામંત્રી સાથે. ત્યારે અત્યારે વાત કરીશું જેમની દુકાનને સીલ મરાયું છે અને ત્યારબાદ આપણે પ્રમુખ સાથે વાત કરીશું. શું નામ છે તમારું? રમીલાબેન. શું કહેશો? આજે તમારી દુકાનને સીલ મરાયું, તમને નોટિસ મળી હતી? ના, મને નોટિસ અત્યારની તાજી નોટિસ મને મળી નથી ને અત્યારે હું મારા પ્રસંગમાં બિઝી હતી, મને કંઈ ખબર નહીં ને મારી દુકાનને તાળું માર્યું. એટલે મેં ગયા મહિને જ એક ભાઈને ભાડે આપી દુકાન. હવે એ ભાઈનું મારી પર ફોન આવ્યો કે દુકાને તાળું માર્યું છે ને તમે આવો કરીને. બરાબર. તો મારું તાળું તોડી નાખ્યું છે, તમારી ગેરહાજરીમાં તાળું તોડ્યું, મને પૂછવામાં નથી આવ્યું કંઈ. બરાબર. ને અહીંયા આવીને મેં જોયું તમારું તાળું તોડી નાખેલું, એ લોકોનું તાળું લગાવ્યું છે. તમારી અહીંયા હાજરી નહોતી? ના, નથી મારી હાજરી વગર એ લોકોએ તાળું તોડ્યું છે. બીજું હું એકલી વિધવા બા છું ને મારું વિધવા બેન છું એકલી, ને મારું આવી રીતે તાળું તોડી નાખ્યું તો મને એ લોકોએ કહેવાની ફરજ હોય, મને બોલાવવાની ફરજ હોય, મને બોલાવી નથી અહીંયા એમણે એમ. તમારી ઘરે તમે એકલા જ છો અત્યારે? હા, હું એકલી જ છું અત્યારે. ને અત્યારે મારાથી આ દોડધામ થઈ શકે તેવું પણ નથી. મારી પોઝિશન એવી છે કે મારી છોકરી ઘરમાં એકલી છે, 9 મહિનાની પ્રેગ્નન્સી એ મારી છોકરી ઘરમાં એકલી છે ને આજે મારે આ દોડધામ કરવી પડતી છે. બરાબર. શું કહેશો? અમારા માધ્યમથી તમે કહેવા માંગશો? કંઈ નહીં, હવે દુકાન અહીંયા ચાલતી નથી ને ભાડું આટલું બધું છે તો હું ભરી શકું એમ નથી, તો અમને થોડું ભાડુમાં બી કંઈક એ લોકોએ કરી આપવું જોઈએ. સુવિધા છે અહીંયા કોઈ? અહીંયા કંઈ નથી. અમારું જે દુકાનમાં અત્યારે તૂટ્યું ફૂટ્યું છે એ બી રિપેરિંગ કામ કંઈ પણ થયું નથી, એમને એમ પડ્યું છે બધું ને એવામાં જ મેં દુકાન ભાડે આપી છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે એમણે વાત કરી કે ફેસિલિટી આપણે આગળ જોઈને પણ આવ્યા. પાછળ બાથરૂમની જે પરિસ્થિતિ હતી ને દુકાનોમાં જે આપણે જોઈએ કે પરિસ્થિતિ છે, પોપડા પણ ઉખડી ગયા છે અહીંયા ને જે રીતની કામગીરી દેખાઈ રહી છે. અને વેપારીઓએ વાત કરી કે ભાડું શેના માટે એ લોકો વધારી રહ્યા છે કે જે બી કોઈ પ્રશ્ન છે વાત કરીશું સીધા फूड मर्चेंट एसोसिएशन ना प्रमुख आरसी पांडे साथे. पांडे जी बताएंगे आप क्या बोलना चाहेंगे इस समग्र मुद्दे पे? हम बरसाल से आरसी पांडे जी प्रमुख बोल रहा हूँ कि ये जो है हमारा 80-81 बरस उम्र हो गई और तालाब के किनारे से हम लोग ये मंडी बना करके झोपड़ा बांध करके धंधा करते थे. उस समय गुणवंत भाई मणि भाई देसाई यहाँ के चेयरमैन थे वो जमाने में. वो जमाने में. जी. तो वो क्या बोले कि आप लोगों के लिए चलो हाथ जोड़ करके मैं ये तालाब को मांग रहा हूँ, व्यापारी और खेडूत के व्यापार के लिए दोनों जन का ज्वाइंट चलेगा धंधा. तो हम लोग गया वहाँ हाथ जोड़ करके, ये तालाब 1 रुपये दान में मिली. दान में मिली हुई जगह? हाँ जी. दान में मिली. तो ये इसके बाद में रमेश भाई मगन भाई देसाई आए. वो आए तो यहाँ पर ये बोले कि मैं मार्केट बनाऊंगा. तो बनाने के लिए वो इसको तालाब पाटा गया. फिर हमारी एक ये पीएमसी मार्केट की जगह यहाँ पर थी, ये रोड के बगल में मदनवाड़ के पीछे. तो इस पर थोड़ा कर्ज हो गया तो ये ज़मीन बिक गई. वो ज़मीन बिकने के बाद उसका पैसा इसमें लगा. फिर हम लोग बोला नहीं, बोला जाने दो चलो. फिर यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग अब धंधा करने लगे, धंधा चलने लगा, बहुत अच्छा धंधा चलने लगा. ये लोग का जो भाड़ा था 1 रुपया 31 पैसा नक्की हुआ था. तो 1 रुपया 31 सब भरता था पैसा, और ये टैक्स जो था वो लोग हम लोग देता था 12 महीना. अभी ये लोग क्या किया, आज 4-5 साल 6 साल हो गया, तो ये लोग बनाया शुगर फैक्ट्री पर अरविंद भाई आए बने. अब अरविंद भाई बने जब यहाँ के चेयरमैन, तो जब ये दुकान हम लोग लिया तो उस समय क्या बात हुई थी कि ये तुम लोगों को दे रहा हूँ 31,000 रुपये में दुकान दिए थे. बोले ये 10,000 रुपया रख करके 20,000 रुपया आप लोगों को ब्याज के सहित परत किया जाएगा. तो मिल गया आपको पैसा? वो नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, उसका कुछ भी नहीं मिला. फिर ये लोग बुलाए शुगर फैक्ट्री पर. वहाँ पर बातचीत हुई कि अभी भाड़ा बहुत हो गया है, इसलिए भाड़ा हम लोग बढ़ा रहा हूँ. तब सब मांग किए कि भाई 1 रुपया 2 रुपया बढ़ा दो. ये डायरेक्ट 5 रुपया बढ़ा दिए भाड़ा. 5 रुपया बढ़ा दिए, वो भी सब गर्ज अपना था लेकर चलाया. फिर उसके बाद 1,000 रुपया महीने का भाड़ा शुरू हो गया. फिर अभी बगैर पूछे किसी को कोई यहाँ मीटिंग न वूटिंग कोई बिना हम लोगों को बुलाया भी नहीं, मनमानी तरीके से ये लोग फट से 5 का 10 कर दिया. तो 10 का हम लोग विरोध किया कि भाई हम लोग बगैर मीटिंग का यहाँ कोई साधन नहीं है, कोई वस्तु 1 रुपये का जब से ये मार्केट बनी है 1 रुपया इसमें खर्च नहीं किए हैं लोग.
रोड की ये कंडीशन कब से है? रोड की कंडीशन जब वही 2-3 साल तक बनी थी तब तक सही थी, नहीं या 30 बरस से रोड ऐसा ही है। अभी पहले बाथरूम संडास थोड़ा चालू था, वो भी बंद कर दिए। अब व्यापारी यहाँ पर जो बहन बेटी हमारे खेडूत भाइयों की आती है वो कहाँ जावे, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो गया यहाँ का। अभी ये है कि अब ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि 10 रुपया भाड़ा भरो, सुविधा साधन कोई भी वस्तु नहीं। हम लोग केस चल रहा है हाई कोर्ट में, हम लोग सब जगह विजय हो गए हैं जी। और वहाँ पर जो ज़मीन लिए तो हमारी एक ज़मीन थी कैलाश रोड, कैलाश रोड में 60 करोड़ रुपए में ये लोग ज़मीन बेचे और वो भी पैसा लग जाके वहाँ लगा दिए। तो अभी इसकी लड़ाई चल रही कि दान की जगह कोई भी ले नहीं सकता, जिसको दिया गया है उसके विचार से ही ये काम होगा। तो अभी हमारा लोग का इसको देने का विचार नहीं है, लेकिन उनको केरी आम का धंधा अगर उधर कराने का है तो हमारी वो 7 करोड़ रुपए का जो ज़मीन बिकी है उसके बदले में हमको 5 बीघा ज़मीन वहाँ पर दे देंगे धमराची। हम लोग अपना पत्रा कर डालेंगे कि कुछ भी डाल करके उसका गोभा करा करके रोड का ये सब बना करके दे देंगे। अगर उनको रूजर टैक्स लेना है तो सरकार को हम लोग देने के लिए तैयार हैं। पांडे जी, आपने बोला कि कोर्ट में ये मैटर चल रही है और अभी ये जिस तरह से आज इन्होंने सील मारा है एपीएमसी के द्वारा, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि ऑलरेडी कोर्ट में आपकी मैटर चल रही है? हाँ, हमारी और सील मार दिया है, तो आप क्या सील मार दिया है तो ये गलत किया है। इनको पहले सबको बुला लेना चाहिए कि तुम्हारे दुकान में सेल मारने का है, तुम भाड़ा भरते हो नहीं। भाड़ा कोई मतलब परिस्थिति यहाँ की डाउन इतनी है कि कोई भी आदमी नहीं भी भर सकता है, तो कोई 2000 कोई 1000 भाड़े पर दे के अपना रोटी रोजी चला रहा है। बाकी अब ये लोग गलत किए, आकर के बिना पूछे बिना कहे आकर के ताला मारने लगे। 15 दुकान ये लोग का थोड़ा गलती है, ये मैं मानता हूँ, जो कि 3-4 बरस से भाड़ा नहीं भरे हैं। फिर भी वो लोग को सहूलियत तो देना चाहिए सरकार को कि भाई तुम्हारा चलो ये सहूलियत मैं करता हूँ, तुम्हारा ताला मत मारो, थोड़ा थोड़ा भर दो। अब हम लोग गया वो 5 रुपये भरने के लिए, भाड़ा भरने के लिए, अब भी गया था, उनका 5 महीने का भाड़ा बाकी है मेरे यहाँ। बोले कि नहीं नहीं अभी तो ये 2000 रुपया महीने का लेने का है, आगे का भाड़ा नहीं। हम बोला हमारा ये मेटल मैंने डाल दिया है कोर्ट में, वो जो फैसला करेगा वो हम मंजूर करूँगा और फिर हम जो फैसला आएगा उसको एक साथ में भर दूँगा। हमारे माध्यम से सैटरडे के माध्यम से आप सरकार को या एपीएमसी के जो भी करता है, आप क्या उनको संदेशा देना चाहेंगे? हम उनको सलाह हमारे पास आवे, बाटा घाट करे बैठे हैं। हम तो उनको बुला रहा हूँ कि अगर हमारी गलती हो तो आकर के हमको बोलो, और तुम्हारी गलती हो तो उसको स्वीकार करो। हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग चोर डाकू नहीं है कि जो बा तो यहाँ से वहाँ बोल दो कि भाग जाओ। तो हम लोग हमारी उम्र हो गई 81-82 बरस, अब हम लोग मरने के किनारे पर आ गए, तो हमारे बाल बच्चा कहाँ जाएंगे बताओ मेरे को। ये दुकान जब दिए थे उस समय बोले थे कि 1 करोड़ रुपए की दुकान दे रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए की, वो करोड़ कहाँ गया जी। अब हम लोग को तो हमारी तो हम तो लोग तो कुछ चाहिए नहीं, और चोर चमार है नहीं कि बेईमानी करूँ कि आज पूरे ये वलसाड़ जिला में आरसी पांडे को जाके पूछो, अगर 1 रुपए का बेईमानी मैं किया हूँ तो अब भी मार्केट छोड़ के चला जाऊँ। पांडे जी, ये जो आज सील मारे हैं यहाँ पे मार्केट में अंदर की दुकानों को मारे, हमें सुनने में आया कि बाहर की जो दुकान है उसका भी कोई मसला है, क्या बोले? बाहर के दुकान का मसला, ये डायरेक्टरों का दुकान है, ये लोग का दुकान है। यहाँ पर भी डायरेक्टरों का दुकान था, सब बेच बेच के ले लिए पैसा। बाहर की दुकान जो है उसमें 65 लाख रुपया बाकी है। बाहर की दुकानों का बाकी है? हाँ, वो डायरेक्टरों का दुकान है, दुकान डायरेक्टरों की। हाँ, अब उससे उसका ताला नहीं मार रहे हैं। अब यहाँ 1-2 लाख बाकी होगा, सब मिला के तब उस पर ताला मार। तो इस बारे में आप क्या बोलोगे एज ए प्रमुख, एज ए हम प्रेसिडेंट? बोलता हूँ कि जिसके पास नहीं है भरने के लिए उसको थोड़ा राहत देवें, वो भी भर देगा आस्ते आस्ते, और नहीं करेगा तो उसका व्यवस्थित तुम वैसा करो कि जो है कि करोड़ रुपया बोले थे, नहीं करोड़ है तो 50 लाख रुपया 25 लाख रुपया उसको दे के हटा दो, तुम ले लो कब्जा, तू करोड़ में बेचो। हमारा ये कहने का मतलब है। और यहाँ पर ये लोग का आवक बढ़ाने के लिए बहुत साधन है, खेडूत बला में सम्मेलन करें, क्यों मार्केट नहीं चलने दे रहे हैं? ये लोग की गलती से मार्केट नहीं चल रही है।
क्या लगता है आपको कि इसका क्या मतलब, इसके पीछे क्या बात हो सकती है? इसके बाद ये है कि यहाँ पर व्यापारी आते हैं और गेट पर निकलते हैं तो 500 1000 रुपए का 2000 का माल लेंगे, 5000 25,000 का तो बोलेंगे 2000 दो। इसके लिए व्यापारी जो है कि वो आने को बंद हो रहे हैं। ये लोग कहा है कि यहाँ से ये लोग भाग जाएं, तो हम लोग भागने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये दान वाली जगह हमारे दिया है सरकार ने हमको। आके सरकार हमको बोला कि हमको जगह चाहिए, तो सरकार ऐसा फेंक नहीं देगी, वो भी तो साधन सुविधा करके देगी। गरीबों को मकान बना के दे रही है, तो क्या मार्केट को नहीं दे सकती? तो पांडे जी, हमारे सत्य डे के माध्यम से आप सरकार को क्या संदेशा देना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे? सरकार को हम मोदी जी के संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भेजें अमित शाह की ये मंडी में बदनामी हो रही है। वो बोल रहे हैं कि अमित शाह ने ऐसा किया है। कौन बोल रहा है ऐसा? ये सब बोल रहे हैं यहाँ वाले जो इतने डायरेक्टर मैनेजर, जिसके मुंह से सुनो ये सब अभी ले लिए हैं, उनकी बदनामी नहीं होना चाहिए। जी। और आकर के यहाँ पर हम लोग बुला रहा हूँ, अरविंद हो भाई हो, हमारे भाई हैं, धवल भाई को बुला रहा हूँ। धवल भाई आ करके इसका समाधान करें। हम लोग तैयार हैं, जैसा बोलेंगे वैसा करने के लिए तैयार। अगर उनको इसकी ज़रूरत है तो सरकार ले सकती है, और हम लोगों को कहीं पर भी दे दे, हम लोग अपना मार्केट बना के धंधा कर लेगा। हमको उनकी पक्की दुकान नहीं चाहिए जी। क्योंकि हमारे पास 50 लाख 40 लाख है नहीं, तो हम लोग तो अपने सुविधा से काम करेंगे। इसलिए हमारा अनुग्रह है कि अरविंद भाई हों, कि अश्विन भाई हों, कि भरत भाई हों, सब यहाँ पर आए, हमसे कायदे से बात करें। आवक बढ़ाने के लिए बहुत है, जब इसका आवक बढ़ेगा तो उनका मार्केट शेष बढ़ेगा। जी। हम एक ज़माने में 25-25 10-10 गाड़ी माल भरते थे, और आज हम लोग भिखारी होके बैठे हैं। खेडूत बोलता है ये मंडी में कोई क्या लेके आऊँ माल, पांडे जी तुम हमारे घर पर चले आओ, उधर धंधा करो, मैं माल देता हूँ। जी। 10-20 लाख का खेडूत माल हमको उधार देते हैं, ये मिलना सुन लो। जी। और मैं अरविंद भाई से रिक्वेस्ट भी किया था शुगर फैक्ट्री में, तो उनको तो घमंड था। उनके पिताजी भी माल लेकर के हमको लाते थे, 5-10 पार्टी लेकर के आते थे। ये मंडी में हमारी 81-82 बरस उम्र है। तो मैंने पूछा कि आपके पास इतना मिल्कियत कहाँ से आ गया? थर थर कांपने लगे, आप कौन होते हो पूछने वाला। हम बोला इतने जल्दी बिना घोटाला का पैसा तो नहीं आ सकता। तो ये सब अपने नहीं पूछता हूँ, लेकिन मतलब क्या, सरकार से निवेदन है कि आ करके यहाँ समाधान करें। जो बोलेंगे हम लोग तैयार हूँ जी। बाकी और हमको कुछ चाहिए नहीं। एक दुकान है, हमको 2 दुकान चाहिए भी नहीं। हम लोग कमीशन एजेंट थे, हम लोगों का लाइसेंस नहीं दिए आज 5 जब से अरविंद आए हैं। जब जीते थे अरविंद का तो मैं गांव-गांव में जाके अरविंद को जिताया था, लेकिन अरविंद भूल गए वो सब। बाद में गए तो सब 420 में पड़ गए। अब ये हमको ये करना है कि सरकार का हमको नुकसान नहीं करना है, सरकार का टैक्स बढ़े, कमानी होए। हम लोग अभी बोक्सा लेता हूँ 5 रुपया GST लगता है विचार करो। दूध पर, दही पर, हर एक चीज हमारे लोग के कौन सब चीज़ पर सरकार नहीं दे रही है। हम सब रिटर्न भी भर रहे हैं, तो जो कुछ हमारे पास है हम लोग तो भर रहे हैं। तो हमारे लोग के गुनाह क्या है कि तुम हमको ऐसा भगाना चाहते हो? जी। हमारा ये कहने का मतलब है, और अनुग्रह उनसे अनुरोध है कि आकर के इसका समाधान करें। जी। हमें यहाँ गरीब व्यापारी 70% गरीब व्यापारी है, जिसका कि पीढ़ी के पीढ़ी खत्म हो गई। अब उसका बाल बच्चा कहाँ जाएंगे? उस समय ते लोग बोल दिए 1 करोड़ रुपए का दे रहा हूँ, अब आज वो लोग भिखारी बन गए हैं बेचारे। तो इसके लिए मेरा अनुरोध है कि आके सबका निराकरण करें, और इसमें सरकार हस्तक्षेप लेवे, और वैसे आदमी के हाथ में मत बागडोर देवे। अपने सरकार लेती है, सरकार को हम लोग भरने के लिए तैयार है। जो टैक्स है हम लोग सरकार से बेईमानी कभी नहीं करूँगा। तो
આ હતા ફૂડ મર્ચન્ટ એસોસિએશનના વેપારી મંડળના પ્રમુખ એસોસિએશનના, અને જે મહિલા જેઓ વિડો છે જેમની દુકાનને સીલ મારવામાં આવ્યું ને એમણે કીધું કે મારી હાજરી વગર સીલ મારવામાં આવ્યું. સમગ્ર પ્રક્રિયા છે આમાં ઘણા બધા પરિબળો છે. ત્યારે જે પ્રમુખ શ્રી છે આરસી પાંડે, એમણે અહીંયાથી સત્યના માધ્યમથી ડાયરેક્ટ રજૂઆત કરી છે આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને કે તેઓ અમારી રજૂઆત સાંભળે અને લોકલાડીલા સાંસદ નવનિયુક્ત સાંસદ ધવલભાઈ પટેલ, જેમનાથી સૌ કોઈને આશા છે અને ધવલભાઈ દરેકે દરેક સમસ્યા જે વલસાડ ડાંગ હોય કે એમના તમામ મત વિસ્તારની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાની પ્રયત્ન કરે છે. ત્યારે ફરી એકવાર કહીશ કે સાંસદ ધવલભાઈ પટેલ અને જે કોઈ બી આમાં મદદ થઈ શકે અને આ જે સમગ્ર ઉકેલ આનો આવે એપીએમસી માર્કેટનો, કારણ કે અમે પોતે પણ સાક્ષી છે કે એક સમયની ધમધમતી માર્કેટ હતી. જે રીતના વાત કરીએ એમણે ટ્રકોની ટ્રકો કેરીઓ આવતી હતી. છેલ્લા 2-4 વર્ષથી અમે પણ જોઈ રહ્યા છે કે જે રીતના વેપાર કથળી ગયો છે, ખેડૂતોની હાલત પણ ખૂબ જ અહીંયા કફોડી થઈ ગઈ છે. ત્યારે આ સમગ્ર મુદ્દે કઈ રીતનો ઉકેલ લાવે છે સરકાર, આમાં કઈ રીતે હસ્તક્ષેપ કરે છે એ આપણે જોવું રહ્યું. દિશા દેસાઈ, સત્ય ન્યૂઝ, વલસાડ.